Ji beta, so today as you people are having your revision test 2, your syllabus of the revision test 2 is the 3 chapters. The 3 chapters that is for revision test 2. First is you are having morphology. The syllabus I have already told you, I have already clarified the syllabus for this chapter. Root, stem and leaf won't be there as for your theory paper, right? But if you are getting your description of the flower or the plant, then definitely you will be having your description wise. Description wise, you will be definitely having this topic in your paper, right? So this is the morphology, right? Second is the structural organization, and from the structural organization again I have clarified all the topics. It is only the animal tissues that which you have to study, right? Nothing apart from these. No descriptions of the various animals, that is the frog is there or the cockroach is there, earthworm is there. इन सबका कुछ नहीं पढ़ना आपने सिर्फ एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है. डन. नेक्स्ट इज आफ्टर दिस morphology हो गया, एनिमल टिश्यूज हो गया, and the third is the cell chapter. The cell chapter, that is only the structure wala chapter, because the other cell, that is the cell division and cell cycle, that has been deleted. Okay, तो वो आपका delete हो चुका है. So cell structure वाला जो chapter है आपका, that is the structure cell as a life of the unit of the life, sorry. ठीक है, तो वो वाला जो chapter है आपका वो आपको आएगा. So this is the 3 chapters. With this we'll be done with the revision test 2 also today, that you are going to have it today, and also with this we have finished all the revision part, right? Now if you have any particular questions in any of the topics, because already I have revised these and we have discussed already in just in a few days back we have discussed the cell chapter. So if you have any question you can please ask me. Otherwise I'm going to discuss the assertion reason questions today from the 2 chapters, animal tissue and the cell structure. But morphology chapter, because that will be dealt only through the small little topic, so it is I have not got any of the questions till now on the internet from only the flower. Okay, there are many number of the questions assertion reason on the root, stem, leaf, बहुत सारे हैं, लेकिन flower में से कुछ नहीं मिला मुझे. So in the coming days we will be revising it, right? Yes, Jyot, what is your question? Unmute yourself, बच्चे. मैम डायग्राम के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे? डायग्राम रिलेटेड मतलब डायग्राम के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे? जैसे डायग्राम तो आएगा नहीं फिर. हाँ, तो डायग्राम में मैंने बताया हुआ है आपको. आप लोगों को पहले तो डायग्राम है किस चैप्टर के, ये सेल चैप्टर के हैं, ठीक है. मॉर्फोलॉजी में से भी है, एनिमल टिश्यूज में से भी है आपको, और जिस भी चैप्टर के आपके ये डायग्राम्स हैं वहां पे अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स में से आपने सिंपल डायग्राम जो होते हैं ना क्वेश्चन, डायग्राम आएगा आपको तो एनसीईआरटी वाला बुक का, ठीक है. आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखनी है अच्छे से. एनसीईआरटी बुक में से स्कैन होके आएगा, या आपकी जो डायग्राम मैंने जैसे बनवाए हैं आपको हो सकता है वो बिट डिफरेंट है, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ना माइटोकॉन्ड्रिया जैसे डायग्राम जो है सेल चैप्टर के दिए हुए, आपकी बुक में उन्होंने 3 डायमेंशनल बनाया हुआ और मैंने आपको 2 डायमेंशनल करवाया, ठीक है. सो अब आपको कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, सिंपल ये एनिमल टिश्यू है लेट्स से, ठीक है. सो अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके रिलेशन में आ जाएगा कि लेट्स से अगर आपको डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन तो उन्होंने क्या कर दिया कि दिस इज लेट्स से द डायग्राम ऑफ एनी टाइप ऑफ द टिश्यू, राइट, द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट विच आई कैन ड्रॉ फटाफट, राइट. तो अब इसमें आपको क्या आ सकता है, या तो लेबलिंग आ सकती है. यू आर गिवन दैट डू द लेबलिंग ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, एंड द फॉलोइंग पार्ट्स आर लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी, ठीक है. अब आपको ये 4 पार्ट्स की लेबल बोल दी है करने के लिए, राइट. अब लेबलिंग करने के लिए बोल दिया है तो यू विल बी जस्ट गिवन द लिंक्स विद, आपको नीचे ABCD में यहाँ पे ऑप्शंस दी जाएंगी, दैट इज ए इज ABCD में, सॉरी 1 2 3 4 में 1 2 3 एंड 4 लेट से आपको ये दे दिया क्वेश्चन में, दैट 1 इज एक आपको दे दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियस है, एक बेसल ग्रैन्यूल है और एक साइटोप्लाज्म है, लेट्स से ये, ठीक है. अब आपको यहाँ पे जो कोड्स दिए जाएंगे, जो कोड्स आएंगे आपके, यानी कि ABCD आंसर्स. ABCD आंसर्स में आपको मैचिंग दे दिया है, राइट. मैचिंग कैसे दे दिया, दैट A इज हैविंग, व्हाट इज द A, यस टेल मी, व्हाट इज A आउट ऑफ दिस, यस टेल मी,
ये लेबल्स भी आपके बड़े में ही आएंगे अगर आएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना बचे कोई। हाँ जी, व्हाट इज ए? टेल मी, unmute yourself and tell me the answer. What is A? A is 1, A is 2, A is 3, A is 4. क्या है इनमें से? ठीक है, कुछ भी है आप मेरे को आंसर बता देना। फिर उसके बाद लेट्स से उसके बाद बी का उन्होंने दे दिया, बी में उन्होंने दिया बी इज 2, बी इज 3, बी इज 4 एंड बी इज 1। कुछ भी दे रहे हैं, इसी तरह से आपको लिंक दे देंगे सी और डी का। अभी तक फिलहाल बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? बताओ, एनी आंसर, एनीवन? Anji, can you hear me, all of you? Can you please give me the answer for this? What is ABCD labeling out here? Huh? No answers. Very bad. Anji, tell me the answer. Option C. Option C. Yes, this is option C. Who gave this answer? Anji, who was it? Harnoor. Very nice, Harnoor. Very good. Harnoor. Yes, very good, very good. So Harnoor, this is right. First is A is 3. A क्या है? Basal granule is 3. ये रहा, ठीक है। फिर 4 is B is 4. B is 4th. 4th is C, cytoplasm. C is 2. C is second, that is the nucleus. D is 1. D is 1, that is the basement membrane. है ना? तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आएंगे। आपको लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है जहां पे ये लेबल्स इस तरह से आपको मैच में दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करवा दें। अब जितना कुछ आपने यहाँ पे लेबल किया है, सीलिया किया है, साइटोप्लाज्म किया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी अगर कंपोनेंट्स दे दें, ब्लड वेसल एंड ऑल वो दे दें, मेम्ब्रेन दे दें, तो मतलब कहने में कि इतने सारे पार्ट्स उन्होंने दे दिए आपको, दैट इज नाउ द कंफ्यूजन इज स्टिल मोर, है ना। आपको 8 पार्ट्स दे दिए, 4 पार्ट्स के लेबलिंग के लिए 10 पार्ट दे दिए, 12 दे दिए, तो दिस इज दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग इट अप, right? Here it is very clear, cytoplasm, nucleus, and this very easy concept this is, but in the other diagrams like your cell organelles, ठीक है, तो cell organelles में जैसे आपने cilia flagella का किया है या centrioles का किया है, तो उन portions में आपकी complexity बढ़ जाती है। वहां पे आपको ये labels जो है वो पता होने चाहिए कि किस part को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको हमने सेम नेम देना है जो आपको लेबल में करवाया, हो सकता है उसके मीनिंग के साथ एसोसिएटेड कोई नेम दे दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से टिश्यूज के अंदर का जो फ्लूइड होता है हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं, यूजुअली वी कॉल इट एज मैट्रिक्स, है ना। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स टर्म नहीं लिखते, हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। हमने सिंपल लिख दिया या फ्लूइड लिख दिया गल्ला। तो आप लोगों ने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यू बी वेरी मच क्लियर विद दीज कि हो सकता है टर्म सेम लिख दिया जाए, हो सकता है उसका रिलेटेड मीनिंग के साथ टर्म दे दिया जाए, लेकिन आपको इस तरह से वास्ट लेबलिंग में से भी 4 पार्ट्स की लेबलिंग आ सकती है, आपको 4 से 4 सीधी लेबलिंग आ सकती है, आपको 3 कॉलम में लेबलिंग आ सकती है। तीसरा कॉलम क्या होता है, जैसे लेट से ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम आ गया, एक तो आपका एबीसीडी है ही है, ठीक है, दूसरा आपका लेबल्स आ गई कि मतलब इसमें से लेबलिंग कौन सी सही है, और आगे अब उसका वो फंक्शन लिख रहे हैं या समथिंग लाइक उसका रोल लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे सी के लिए हम लिख देते हैं, दैट इज सी के लिए आपको यहाँ पे देंगे इट इज द कंट्रोलिंग यूनिट, ठीक है, दैट इज द कंट्रोलिंग यूनिट और द कंट्रोल पावर, देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम इट। इस तरह से कुछ भी आपको चीजें लिख के दे रहे हैं, दैट इज बेसल ग्रैन्यूल के लिए लिख के दे रहे हैं, इट इज द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और द हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम इट, ठीक है। देन द सप्लाई ऑफ द मटेरियल्स इज देयर, ये सप्लाई आ गया, राइट, एंड देन देयर इज द you can say the interconnection of all the organelles, ठीक है। so this is acting as an interconnection। अब ये आपको 4 नाम दे रही है यहाँ पे। अब इसमें आपने लेबल कैसे करना है, अब यहाँ पे तो आपको 4 तक लेबलिंग है। लेट्स से जैसे अब ये हेयर्स राइजिंग फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल है, यानी ए, आपने ए को मैच किया था 3 से, और साथ में अब यहाँ पे आ जाएगा 5, इस तरह से 5 भी लिखा हुआ है साथ में, 1 3 5, मतलब क्या,
कि बेसल ग्रैन्यूल ए का लेबलिंग बेसल ग्रैन्यूल है और उसका फंक्शन जो है वो हेयर अराइज करवा रहा है 5, 135 हो गया। बी का 4 के साथ क्या है, 4 इज साइटोप्लाज्म, तो दैट इज 8, ठीक है, यहाँ पे 8 भी आ जाएगा साथ में, दिस इज 4 एंड 8, ऐसे ट्रिपल मैचिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो डायग्राम बेस इस तरह से क्वेश्चन आएंगे लेबलिंग के ज्यादातर, ठीक है। सेकेंड आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे आपको ये पार्ट्स दे दिए राइट, और आपको नीचे कल फंक्शंस दे दिए एंड आपको बोलते हैं कि इनको फंक्शंस के साथ मैच करो। यहाँ आपको सिंपली पूछते हैं which of the following parts ABCD, which of the following parts shows the following function। तो एक फंक्शन दे दिया आपको और जैसे यही है कंट्रोलिंग यूनिट, तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा पार्ट कंट्रोलिंग यूनिट एक्ट करता है, तो दैट इज द सी, इट इज द न्यूक्लियस। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो भी हैं डायग्राम बेस आएंगे। डायग्राम में गलती बना के भी आ सकती है। गलती कैसे आ सकती है, लेट्स से हाँ जैसे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ही है, तो उनके अंदर ये जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स बनाए है ना, एंड वी आर मेकिंग ऑल द डिस्क्स एज सेपरेट, हमने सारी सेपरेट बना दी, स्टैक्स बनाई और आपको ये लेबल करके दे रहे हैं कि दिस इज द थाइलाकॉइड्स, दिस इज द स्ट्रोमा, दीस आर द लैमेले वगैरह वगैरह। लेकिन अब आपको पूछता है कि विच इज द लॉन्गली लेबल्ड पार्ट, 4 पार्ट लेबल कर दिए हैं, रॉन्गली लेबल्ड पार्ट कौन सा है। यहाँ सॉरी थाइलाकॉइड की जगह हम लिख दें ग्रेना, ठीक है। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, थाइलाकॉइड की जगह मैंने लिख दिया ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला और डीएनए, राइबोसोम, सब कुछ लिख दिया। अब आपसे नीचे एबीसीडी ऑप्शन में लिख दिया हमने सारों के पार्ट। अब इनमें से रॉन्गली लेबल्ड कौन सा है, ऑब्वियसली यही है ना, ग्रेना तो स्टैक होता है, थाइलाकॉइड एक डिस्क होता है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपसे कंसेप्ट बेस्ड जो है वो पूछी जा सकती है। हाँ जी, ओके जोतप्रीत, इट वाज योर डाउट, समथिंग लाइक लेबल रॉन्ग और डायग्राम इज रॉन्ग और डेवलपमेंट तो आपको है नहीं है, नहीं तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के डायग्राम्स जो है वो आ जाते हैं। हाँ आपको वो मैंने बताया था लाइफ साइकिल का भी क्वेश्चन, आपको बोला था कि जो लाइफ साइकिल हमने बनाया था तो उसमें से मैंने बनाया भी था क्वेश्चन एक शायद यहाँ पे क्लास में भी स्टेजेस के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज विच इज रॉन्गली प्लेस्ड इन द सीक्वेंस गिवन। यहाँ आपको अलग अलग डायग्राम्स दे रहे हैं और उसको अरेंज करने को बोला जा रहा है, या फिर आपको फ्लो चार्ट बना के दे रहे हैं और पूछते हैं कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इन फ्लो चार्ट्स में से, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं। आपको आइडेंटिफिकेशंस पूछी जा सकती हैं सिंपल, आपको जैसे ये प्लांटे में इतनी सारी एग्जांपल्स बनी हुई हैं, पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, तो उसमें से कोई भी 2-4 फिगर्स डाल के और उससे पूछ रहे हैं कि एबीसी में करेक्ट मैचेस बताइए, तो एबीसी का करेक्ट मैच लेबलिंग तभी आता होगा और आपको आइडेंटिफिकेशन आती होगी, ठीक है। तो प्लांटे के लिए आपका ऐसे वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दीस डायग्राम ऑफ द डायग्राम टाइप थिंग्स। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? जोत आपका क्लियर हो गया डाउट? जोतप्रीत जी, जोत, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? हाँ जी, others if you have any doubt, any question, other people if you have any doubt, any question, all clear, right? Okay, so today you are having your revision test 2, that is from these 3 chapters. Any doubt, any question, anything which you have not understood during the lectures or during the revision classes? All clear? Okay, so no problem. So we are going to discuss a few of the questions now. So participate all, right? All of you, please participate in this questioning, answering, right? I have opened out some of the, one second, the assertion reason questions for you. So let us start discussing these questions. Whatsoever the question, but are you able to hear this? Listen to me and look into your screen, because I think my screen has been paused. Anji, are you able to look into the screen? Second. Okay. So now let us start with this assertion reason questions. This is from animals tissues chapter, right? So coming to this animals tissue, first is specialization of cells is advantageous for the organisms. Assertion and reason. Just read it and tell me whether it is true or not.
And the assertion specialization of cells is advantageous for the organisms. Is it true? Batao. True. Yes, it is true. The reason, it increases the operational efficiency of an organism. ये भी true. ये भी true है, right? And does it explain the assertion? Yes. Sure. Yes, it explains the assertion. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशलाइजेशन अगर सेल की हो जाती है, यानी हर सेल को अपना काम मिल जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए एडवांटेजेस है. ऑब्वियसली हर एक सेल अपना अपना काम करेगा तो वो जल्दी काम निपट जाते हैं, है ना, और बिल्कुल एफिशिएंटली काम होता है. So this is, it increases operational efficiency. Yes, that increases the operational efficiency as well of the organism. So yes, these both explains one another. So this is the A answer. Okay, you read this also, the description they have given. Specialization of cell into tissue, organ system is advantageous for the organisms. It increases the operational efficiency through division of labor, which avoids duplication of work. मतलब एक ही ऑर्गेनेली सारी की सारी ऑर्गेनेलीज एक ही काम के पीछे ना पड़ी रहे और टाइम सेव हो और रादर हमारा काम भी एफिशिएंटली हो, उसके लिए स्पेशलाइजेशन इज नेसेसरी. नेक्स्ट, सेकंड. The squamous epithelium is made of a single layer, thin layer of flattened cell with irregular boundaries. Anji, this is true or not? All the students, those who are here, please participate. Please. True, ma'am. Yes, it's true. Very nice. Next is reason. They are found in walls of blood vessel and air sac of wings. Are they found in the blood vessels and air sacs? True, ma'am. No. Squamous. True. True. Okay, true. And does it explain it also? No. The explanation is not there because the location and structure will never be one's explanation. है ना, location और structure link नहीं होता है कभी. Structure और function location, structure और function एक दूसरे की explanation हो सकते हैं, function structure एक दूसरे की हो सकते हैं, लेकिन location कभी explain नहीं करता है किसी चीज को. ठीक है, so this will be B. Squamous epithelium is a single layer flattened cell in contact with the basal lamina of the epithelium. This type of epithelium is often permeable and occurs where small molecules need to pass quickly through membranes. Okay, because of its porosity, that is, maybe it is also helping in the passing out of the materials, that is like exchange of gases. Air sac की बात करी थी ना अभी, ठीक है, यहाँ diffusion of the materials उसी से ही होता है ना, through the epithelium only. Next is assertion. Urinary bladder can considerably expand to accommodate urine. Anji, is it true or not? True, ma'am. True. Urinary bladder can considerably expand. Yes. Then is reason. It is lined by stretchable squamous epithelium. False, ma'am. False. Yes. Yes, ma'am. False. C है इसका answer. C. So yes, this is urinary bladder is not lined by squamous epithelium but by transitional epithelium, which is stretchable compound epithelium. Okay, it has a single layer of cuboidal cells. ये चीज अगर आपको पता है तो well and good, नहीं पता है तो please आप इसमें information जो है वो click करके रख सकते हैं. So 2 to 3 middle layers of the large polygonal cell and superficial layer of the large broad rectangular cell. Stretching considerably flattens and broadens the cells of superficial and middle layers, hence causing expansion of the urinary bladder. Right. Good. Next, others भी बोलो, दूसरे लोग भी बोल लो कुछ, दो ही बच्चे आंसर दे जा रहे. Next is assertion. Columnar epithelium lining the intestinal mucosa appears to have a brush-like appearance. Yes. True or false? True. True. Raman?
The ma'am. it is the intestinal mucosal layer के ऊपर जो epithelium लगी है columnar that appears to have a brush like appearance भी present होती है उसके ऊपर. Reason is intestine की बात कर रहा है ये. Okay. The reason the large number of the microvilli are present on the brush bordered columnar epithelium. Yes. Is it true or not? Yes, ma'am. A option. Yes. This also explains the existence of assertion. क्योंकि ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम बनाते हैं, सो इसीलिए उसने पहली वाली टर्म भी बोली कि कॉलमनर एपिथेलियम है वो लाइन करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को और ब्रश लाइक अपीयरेंस देता है. सो बोथ आर रेजिंग फॉर द सेम कंसेप्ट, हेंस इट इज ए. ओके, यू कैन रीड दिस डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट. Right. So coming to the next is fifth. Assertion. Surface of skin is impervious to water. True, ma'am. That is very true. Reason is surface of skin is covered with stratified cuboidal epithelium. Ma'am, वो stratified squamous से होती है तो ये false होगा. Yes, so this is false, right? So C answer. Very nice. So this is impervious क्योंकि ये stratified keratinized squamous epithelium का बना होता है, not the cuboidal epithelium. ठीक है. और दूसरा चीज इसमें जो होता है हमारे पास, that is जो impervious का मतलब क्या है? That is it is not allowing the water to enter in. ठीक है. Impervious means the things from the outside can't enter through the skin, right? Next is sixth question. Assertion. Stomach and intestine of our body has columnar epithelium. Yes. True or false? It's true. Stomach and intestine of our body has columnar epithelium. That's true, right? And reason columnar epithelium helps in secretion and absorption. Yes. Epithelium का तो काम ही यही है, secretion और absorption का. सही है कि नहीं? है ना? And does it explain? Yes, ma'am. Sahi. Does it explain it also? Ma'am, yes. Yes. It explains. हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे उसने कंसर्न क्या दिया है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसका काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, और जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वाले फंक्शंस जो हैं वो स्टमक इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन्स में चल रहे हैं. सो दैट इज इट इज एक्सप्लेनिंग द थिंग, राइट? सो दिस इज यस. ओके, गुड. स्ट्रक्चर और लोकेशन का लिंक नहीं कभी आपके पास आएगा. स्ट्रक्चर और लोकेशन एक्सप्लेन नहीं करेंगे कभी. बाकी ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन का तो बेस्ट लिंक होता है. अगर स्ट्रक्चर आ गया, फंक्शन आ गया, तो ऑब्वियसली वन इज एक्सप्लेनिंग द अनदर. ओके, नेक्स्ट इज assertion. Cell junctions are present in the epithelium and other tissues. ये लास्ट इस चैप्टर का करते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते हैं 5 minutes फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, सेल चैप्टर आई गेस. ओके, आई सी. हाँ जी बोलो. ये assertion cell junction are present in the epithelium of other tissues. Cell junction. Yes, ma'am. हाँ, they are present in the epithelium, और epithelium with the other tissues junction में भी help करता है ना. epithelium and other tissues की junction में ही होते हैं cell junctions. Next is reason. Among cell junctions, adhering junction help to stop substances from leaking across a tissue. False, ma'am. Which junction help to stop substances? Ma'am, tight junction. So this is the three types of the junctions are found, and tight, and this is adhering junctions perform the cementing function to keep neighboring cells together. यहाँ पे adhering का लिख दिया, but leakage जो provide avoid करवाता है, that is a tight junction. वैसे gap होती है, tight होती है, adhering होती है, तीनों होती है. ठीक है. So I guess now these concepts are coming clear to you for the assertion reasons. Let us start with the second of this, that is a chapter cell. Okay, a few of the assertion reasons we'll do for this. Organisms are made up of cells. जल्दी बताई जाओ. Yes, ma'am. Reason: cells are structural unit of living organism. A cell keeps its chemical composition steady within its boundary. True.
है ना? Yes. Does it explain also? Yes, it explains because cells are the structural unit of living organism. उससे बोला है वो स्ट्रक्चर देगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्डअप होगा, है ना? एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला कि उससे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो स्टेडी रहती है विद इन इट्स बाउंड्री. तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपनी चीजों को स्टेबल भी रखना पड़ेगा, स्टेडी रखना पड़ेगा अपनी जगह पे. सो यस, इट इज ए. राइट. सेकेंड इज assertion, specialization of cells is useful for organism. True or false? ये तो सेम ही हो गया. Yes, True, ma'am. it increases. ये तो सेम ही आ गया. Okay, next third is the number of the cells is a multicellular in a multicellular organism is inversely proportional to the size of the body. ये बताओ. Is it that the number of the cells in multicellular organism is inversely proportional to the size of the body? Is it true or false? Why thinking so much? Ma'am, false. False. Yes, because एक आप सिंपल एक एंट और एलिफेंट की बात करो, एंट का साइज कितना छोटा है और ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स भी तो कम होंगे. एलिफेंट कितना बड़ा है, जायंट है, और उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी ज्यादा होंगे. सो इट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज प्रॉपर्ली प्रोपोर्शनल. दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली. सो रीजन assertion false का देखो हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज डी. ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास जहाँ assertion ही false हो रहा है, आपने फटाफट आंसर्स में चेक करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना रीजन ढूंढने का सही है कि गलत. सो इट इज डी इज द आंसर. ठीक है, ऑल द सेल्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड आर अलाइव, ये तो सही है हमारे पास. डी में ऑप्शन ही एक था जहां assertion false होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज assertion living organisms possess specific individuality with a definite shape and size. True or false? Yes. True. क्योंकि हर स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है उसका डिफरेंट शेप एंड साइज जो है वो अपना है. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज resemble each other at the lower level of organization. Is this true or false? This is also true because lower levels means जैसे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, अगर हमारे अंदर वो मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उनको बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं लिविंग्स के अंदर. लेकिन अगर वो नॉन लिविंग्स के अंदर है, मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, है ना? तो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेम है. डोंट स्टार्टेड विद द सेल. सेल से नहीं शुरू होना, अपने पार्टिकल से शुरू होना है. मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये चीजें सेम है. पर ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उसका इंडिविजुअल जो डिफरेंट डेफिनेट शेप और साइज हो, ये एक्सप्लेनेशन नहीं आता. सो दैट इज, इट इज बी. ओके, next is assertion. It is important that the organism should have cell. Is it important? Yes, ma'am. Reason, a cell keeps its chemical composition steady within its boundary. Yes, and it explains also, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिंपल वो सीधे बता रहा है कि अगर वो बाउंड्री में रहेगा, स्टेडी रहेगा, तो ऑर्गेनिज्म अपना जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाएगा. और उसके अंदर सेल है तो बाउंड्रीज हैं तो इसीलिए वो सस्टेनेबल है. ठीक है, अगर हमारे मटेरियल्स एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर बाउंड्रीज ना होती तो हो सकता है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो पाती, ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ना कर पाते, है ना? नेक्स्ट assertion, द नंबर ऑफ द सेल्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ. ये हो गया हमारा, सिर्फ रीजन चेंज है. सेल इज एन ओपन सिस्टम. यस, टेल मी सेवेंथ. सेल इज एन ओपन सिस्टम. Your time is also over. This is open system, yes, because it is not in concern with the boundaries. Open system means it is interacting with one another, its surroundings. Okay, so cell receives a number of the materials including energy containing nutrients from outside. And does it receive a number of the materials? Yes, of course. That is why we are calling it as an open system, क्योंकि ये बाहर की चीजें ले सकता है, interact कर सकता है with its surroundings. तो इसीलिए इसको ओपन सिस्टम बोला गया है. इट इज एन आइसोथर्मल ओपन सिस्टम एज ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल एट अ गिवन टाइम मेंटेन्स द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसफर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द मटेरियल्स एंड द एनर्जीज आर ट्रांसफर्ड, है ना? सो दैट इज व्हाई इट इज ओपन सिस्टम. ठीक है, सो डन, राइट? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? Anything you want to ask from the session, reason, questions? If nothing is anything is not clear, nothing तो नहीं होगा अभी इस टाइम पे.
Okay. So this was all about your 3 chapters. All the very best to all of you for today's revision test. And then we will be meeting you after the revision test with your doubts, right? Thank you so much. God bless you all. Goodbye.